Imagine detecting harmful gases or harmful fumes using frozen smoke. Scientists created amazing sensors like super sponge from this smoke called aerogels. These high-tech sniffers can find tiny amount of formaldehyde, a harmful gas in homes. Hello everyone. Welcome to the Aptiplus Academy of Civil Services, a premier organization for the Civil Services exam. And in today's News in Focus video session, we'll discuss about this development, aerogel, in detail and about the formaldehyde. We'll also talk about the quantum dots. These quantum dots are minuscule speck of the material so tiny that some describe them as having no dimensions. So let's jump to the topic. This is the first topic, aerogel, the frozen smoke. This topic and related information is important for UPSC and relates to the syllabus topic of GS paper 3, which is science and technology developments and their applications and effects in the everyday life. Let's quickly jump to the context of the topic. The development of sensor made from the frozen smoke or aerosols marks a significant advancement in the detection of toxic gases, particularly as we talked about formaldehyde, especially in indoor environments. So researchers have developed a sensor made from frozen smoke that uses artificial intelligence techniques to detect formaldehyde in real time. Some more details about this development is sensors are made from the highly porous material known as aerogels. ये mostly by volume air है, around more than 99% they are air by volume. So researcher precisely engineered the shape and holes in aerogels में researchers ने बहुत ही precisely shape जो holes के shape होने चाहिए वो precisely engineered किए गए हैं to enhance their sensitivity to formaldehyde. And the open structure of aerogels allow gases to move in and out easily. So that enables the effective sensing capabilities of this material, these sensors. And the sensor detect formaldehyde as concentration as low as 8 parts per billion. जो 8 parts per billion है, this is well below level deemed safe in the workplace, right? And tiny semiconductors, कुछ semiconductors हैं छोटे छोटे से, they are known as quantum dots. They are also incorporated into the aerogels to further enhance their sensing capabilities. इन सेंसर्स के फीचर्स क्या हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा एक दो और हैं, आप देख लीजिए. पहला है रूम टेम्परेचर ऑपरेशन. जो ट्रेडिशनल गैस सेंसर्स होते हैं दे रिक्वायर हीटिंग एंड मोर पावर, बट दीज सेंसर्स ऑपरेट इफेक्टिवली एट रूम टेम्परेचर, सो दे कंज्यूम वेरी मिनिमम पावर. Secondly, these sensors offer high sensitivity to formaldehyde and can distinguish its fingerprint, its presence from other volatile organic compounds, and that uses the machine learning algorithms. And third point जो हमने already बात की थी, these are sensors which consumes very low power, which is 10 to 100 times less power than the traditional sensors. So they are efficient and they are suitable for long-term monitoring applications or monitoring purposes. So quickly let's learn about the application of these sensors. First is indoor air quality monitoring. The sensors are designed to detect formaldehyde. And the formaldehyde is common indoor air pollutant. And this formaldehyde, this gas is emitted by household items such as pressed wood products, wallpapers and paints. So a continuous monitoring of formaldehyde level can help mitigate the health risk associated with the prolonged exposure to formaldehyde, which includes respiratory issues and certain cancers also. And by providing real-time information about the indoor air quality, these sensors offer homeowners and businesses a more accurate picture of potential health hazard. And this application can be extended to provide comprehensive real-time data about the various other hazardous gases in the indoor environment. So it will improve the health and safety in indoor settings. Along with that, the researchers are also working to develop low-cost multi-sensor platforms, ठीक है, on the basis of this aerogel material. उसके साथ साथ वे AI algorithms भी यूज कर रहे हैं for widespread deployment. तो एरोजल की हमने काफ़ी सारी बात कर ली. लेट्स लर्न अबाउट दिस मैजिक मटेरियल. ठीक है, जो यहाँ पे जो मैजिक मटेरियल है ये जनरली टेक्निकली नोन एज एरोजेल और बहुत ही एक्सेप्शनल मटेरियल है, यानी मेडिकल मटेरियल है जो पहली बार डेवलप हुआ था 1930s में. ठीक है, प्राइमरीली इज कंपोज्ड ऑफ द सिलिका. सिलिका सेम मटेरियल है जो ग्लासेस में भी मिलता है, ग्लास में भी मिलता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ एरोजेल इट इज अ पोरस स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर
और other materials such as carbon, metal oxide can also be used to produce aerogel with different properties, right? टेक्सचर की बात करते हैं हम एरोजेल की, तो टेक्सचर एरोजेल का एक होता है एक फाइन ड्राई स्पॉन्ज, आप सबने ड्राई स्पॉन्ज देखी होगी, वो वेरी फाइन ड्राई स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर है, बट इट फील्स वेरी लाइट. इनफैक्ट इट होल्ड्स द टाइटल एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉलिड, दुनिया का सबसे लाइटेस्ट सॉलिड. देखिए जब व्हेन यू प्रेस दिस मटेरियल जेंटली, वो वापस अपनी स्पॉन्ज की तरह वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है. बट व्हेन यू प्रेस हार्डर इट क्रिएट्स अ डिम्पल. बट एक्सेसिव प्रेशर से क्या होगा, जब आप एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करेंगे इस मटेरियल पे, ग्लास की तरह इट शैटर्स. सो इट एरोजेल शैटर्स इनटू टाइनी पीसेस. ठीक है, मोस्टली जैसे हमने कहा मेड ऑफ एयर एंड कैन एलिमिनेट कंटेमिनेंट्स. अच्छा, अर्लियर क्या हुआ था, एक आध साल 2 साल पहले, रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड तेल अवीव यूनिवर्सिटी टुगेदर they have developed an aerogel absorbent that can remove trace pollutants from the waste water. ठीक है, एरोजेल की एक टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर आप याद रख पाए तो प्लीज रिमेंबर, इट इज अ जेल कंप्राइज्ड ऑफ माइक्रोपोरस सॉलिड इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज अ गैस. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आप नोट करें. माइक्रोपोरस सिलिका, माइक्रोपोरस ग्लास एंड जियोलाइट्स. लेट्स लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एरोजेल्स. वन इज लो डेंसिटी. एरोजेल जैसे हमने कहा वर्ल्ड के लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल हैं और डेंसिटी इनकी हो सकती है 0.00112 टू 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो वाटर की डेंसिटी होती है जो कि लिक्विड है, उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये सॉलिड है, उनकी मैक्सिमम डेंसिटी है इनकी 0.5 ग्राम. So it is often referred to as frozen smoke or solid smoke due to its translucent appearance and low density. High porosity, we already talked about it, more than 99%, to be specific 99.8% of its volume is being filled, air filled pores होते हैं ये. तो हाईली पोरस स्ट्रक्चर होता है, तो इससे क्या होता है, थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी मिलती हैं, एक्सेप्शनल थर्मल इंसुलेशन विच मेक्स इट इफेक्टिव इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. अब देखिए थर्मल इंसुलेशन अच्छा है तो थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी. इट इज़ अराउंड, टू बी स्पेसिफिक अगर हम नंबर्स की बात करें, 0.03 वॉट पर MK, and makes it highly effective at preventing heat transfers, and it leads to its uses in application which requires thermal insulation in extreme environment, right? Also talk about the transparency. Generally they are transparent but depends on the manufacturing process and the composition, right? जो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, दैट मीन्स दे कैन अलाउ लाइट टू पास थ्रू, और थोड़े से ओपैक भी हो सकते हैं. ब्रिटल की हमने बात की थी, दे आर लाइट वेट एंड पोरस बट दे आर ब्रिटल, डेलिकेट एंड दे रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड डैमेज, क्योंकि जैसे एक्सेस थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हुआ दे शैटर इनटू द टाइनी पीसेस लाइक ग्लास. अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2 तरह की होती है, सोल्जल मेथड 1, सेकेंड इज सुपर क्रिटिकल डाइंग. ठीक है, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी. नाउ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस, जब हम सिलिका एरोजेल्स की या मेटल ऑक्साइड के एरोजेल की बात करते हैं तो नोटेबल डिफरेंस है, इट्स अबाउट द कलर. यानी मेटल ऑक्साइड्स हैं, उनके वेरियस कलर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिलिका, एल्यूमिना, टाइटेनिया, जिरकोनिया, इनमें बड़ा क्लियर सा स्ट्रक्चर होता है, दे स्कैटर्ड ब्लू और वाइट, तो दे अपीयर ब्लू और वाइट, राइट. जब आयरन ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो उसका कलर होता है ओपैक, बट इट इज रस्टी रेड या येलो कलर के एरोजेल्स बनते हैं इससे. व्हेन वी यूज क्रोमिया तो ओपैक रहता है, लेकिन कलर्स की अगर बात करें तो डीप ग्रीन या डीप ब्लू रहता है. वेनेडिया भी ओपैक है और ऑलिव ग्रीन है इन कलर. अगर हम बात करते हैं नियोडाइमियम ऑक्साइड या समारिया की, सो दे आर ट्रांसपेरेंट बट कलर वाइज डिफरेंट हैं. समारिया जहाँ पर येलो है, नियोडाइमियम ऑक्साइड से अगर हम एरोजेल बनाते हैं दैट विल बी पर्पल. और हॉल्मिया एरबिया की बात करें तो इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट बट अपीयर पिंक इन कलर. Now let's talk about the application of aerogel. One is insulation, we already talked about. They can be used as thermal insulator in variety of applications like building, aerospace system, cryogenic storage containers. Second, they are energy efficient, so they are employed in energy efficient window, clothing and other applications. Oil spill cleanup, बहुत अच्छे absorbent होते हैं, so they can absorb large quantity of liquids, making them useful for oil spill cleanup and the environmental remediation. Catalysis, due to their high surface area, porosity, they also act as the catalyst support in the chemical reaction. Catalyst क्या होते हैं? Catalyst में जैसे कि information एक chemical reaction है,
जहाँ पे ए प्रोडक्ट से एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू दो कुछ इनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट्स में, तो बी बन रहा है। बीच में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देते हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को फास्टन कर देते हैं, तेज कर देते हैं। इस प्रोसेस में इन कैटलिस्ट इन किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करते और आफ्टर द रिएक्शन कैटलिस्ट वैसे के वैसे रहते हैं, राइट। तो कैटलिस्ट ये होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन। एरोजेल जो होते हैं दे आर यूज्ड बाय नासा इन स्पेस मिशंस टू कैप्चर कॉस्मिक डस्ट। अगेन एब्जॉर्बेंट अच्छे होते हैं तो कॉस्मिक डस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। साथ में स्पेस क्राफ्ट में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वहाँ पे यूज किए जाते हैं। साथ में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं क्योंकि लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, और साथ में टेक्सचर एनहेंसमेंट भी करते हैं। तो अपीयरेंस अच्छा करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होते हैं? अच्छा, आपने में से कई लोगों ने जूलॉजी लेबोरेटरी विजिट की होगी। यू माइट हैव ऑब्जर्व डेड एनिमल्स स्मॉल टू बिग which are placed in the transparent glass containers and they are covered with a transparent liquid also. जो ये liquid है it's not water but a dilute solution of formaldehyde. अब जो dilute 4% aqueous solution है formaldehyde का, उसे हम कहते हैं formalin। ये प्रिजर्व रखने के काम में आता है। अब इसको formaldehyde को थोड़ा और पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCOHO, CH2O या फिर इसको कहें CH2O। ये 1 कार्बन कंपाउंड है and it is a colorless, strong smelling, pungent gas which is used in various industry for manufacturing building materials, household products like and it may cause a burning sensation to our eye, nose and lungs at high concentration. And also it is a volatile organic compound that can be emitted by certain materials like wallpapers, pressed wood products, paints, synthetic fabrics, etc. The formaldehyde is naturally produced as part of cell metabolism by all the living beings. तो सारे लिविंग बीइंग की जो सेल मेटाबॉलिज्म होती है उसमें फॉर्मल्डिहाइड नेचुरली प्रोड्यूस होता है बड़े ट्रेस अमाउंट में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपना एटमॉस्फेयर है, एक लोअर एटमॉस्फेयर, एक अपर एटमॉस्फेयर है, राइट। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो फॉर्मल्डिहाइड है इज ब्रोकन डाउन बाय द सन्स हीट एनर्जी एंड इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं हो पाता, ऐसो अपर एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। VOCs क्या होते हैं? VOCs कुछ नहीं है, बस जो सर्टेन सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं वो गैसेस एमिट करते हैं। सो दीज आर द emitted gases from certain solids or liquids. They include variety of chemicals, some of which have short and long term adverse health effect. ठीक है। और जो concentration है बहुत सारे volatile organic compounds की which is consistently higher indoors, which can be up to 10 times higher compared to the outdoors. ठीक है। Now come to the application or use of the formaldehyde. बहुत सारी पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में ये ट्रेस अमाउंट में जो डाइल्यूटेड फॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ की जाती है। ये इलीगल है, इलीगली यूज़ की जाती है प्रिजर्वेटिव की तरह अलग अलग फूड आइटम्स में, जैसे कि फिश, फ्रूट, वेजिटेबल। रीज़न क्या है? उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। लेकिन ये इलीगल है क्यों? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज ए नॉन कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन कहाँ है? बहुत सारी पेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स सच एज पेंट्स, प्राइमर्स विच यूज टू गिव वॉल क्लियर कोटिंग आर मेड विद फॉर्मल्डिहाइड। इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक रेजिन्स, ग्लू, ठीक है, और लेमिनेट्स को फिनिश देने के लिए यूज की जाती है। इट वॉज अर्लियर यूज एज ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल, मॉर्ग्स। तो अभी इसका यूज फॉर्मल्डिहाइड का एज ए डिसइंफेक्टेंट बहुत कम हो गया है, बट इनिशियली और अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी यूज्ड एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट। ये यूटीआई इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया गया था। यूटीआई यानी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी नहीं है ऐसा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है, दो इंटरेस्टिंग थिंग आपको अजीब लगेंगी कि दिस इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ RDX एक्सप्लोसिव। यानी फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो RDX एक्सप्लोसिव बनाने में भी काम आता है। और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विद द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसे हम कहते हैं ना फ्लू शॉट्स लगाने हैं, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में भी यूज होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज ए एंटीवायरल एजेंट, इट इनएक्टिवेट द वायरसेस, तो वहाँ पे भी ये यूज होता है, राइट। अब बिफोर जंपिंग टू द क्वांटम डॉट्स, देर इज वन important announcement for all the aspirant students who are preparing for UPSC examination,
and especially those persons or candidates who are appearing for the UPSC prelims 2024. अच्छा 25th ऑफ फेब यानी कि इसी महीने की 25th को एप्टी प्लस अकेडमी इज ऑर्गेनाइजिंग ए मॉक प्रीलिम्स टेस्ट and this test is free of cost, absolutely free, no charge at all. But you just need to register for this mock test, where thousands of candidates are taking this test, appearing in this test. So this is a good opportunity for you to compete and compare yourself with other aspirants as well. So it would provide a clear picture. So this early analysis of weak, strong area would go a long way in your UPSC journey. And there is also provision for awards. Top rankers would be provided awards and benefits as senior. जो पहले 3 रैंकर हैं और उनके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मर्स हैं यानी 4th से लेकर 10th तक, उनको सबको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, राइट। बेनिफिट्स में क्या है कि पहले जो 3 रैंकर हैं उनको 49 मॉक टेस्ट का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और जो 4th से 10th तक हैं उनको 10 मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, करेक्ट। सो ये 25th फेब को टेस्ट है 11 AM से 1 PM तक, एंड यू कैन रजिस्टर बाय क्लिकिंग द लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन गिवन इन द description of this video, or you can scan the QR code. यहाँ पे जो QR code शो हो रहा है स्क्रीन पे, इस QR code को you can scan to register, and I think you should not miss this opportunity. Along with that, there is one more important information and announcement to all those, especially all those people who are appearing for this year prelims 2024 on 26th May 2024. The Apti Plus Academy is came up with the initial test series for prelims 2024, and this is a comprehensive test series designed by the subject matter expert. और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि more than 4500 और to be precise 4900 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, 10 रिकॉर्डेड डिस्कशन क्लासेस भी है, और साथ में ये जनरली नहीं प्रोवाइड करते कॉन्फिडेंस गारंटीड, यानी कि आपको अगर इफ नॉट सेटिस्फाइड योर मनी विल बी रिटर्न, मनी बैक गारंटी भी एप्टी प्लस अकेडमी आपको दे रहा है। तो अगेन वही रियलिस्टिक एग्जाम सिमुलेशंस हैं दैट विल मिमिक द एक्चुअल प्रीलिम्स एक्सपीरियंस, राइट। और यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ वीकनेस एरिया टू बूस्ट योर स्कोर। एक्सपर्ट डिस्कशन वीडियो हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया 10 रिकॉर्डेड डिस्कशन क्लासेस हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली दैट मिरर्स द एक्चुअल एग्जाम फॉर्मेट, राइट। सो देन दिस निश्चय टेस्ट सीरीज इज अ शॉर्टकट टू प्रीलिम कंफ्यूजन्स. You can enroll in this test series and take a step further towards your IAS dreams. इसके लिए आप एप्टी प्लस अकेडमी की वेबसाइट विजिट कीजिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए, या फिर ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो QR कोड दिया हुआ है स्क्रीन पे, यू कैन स्कैन दिस, राइट। सो लेट्स जंप टू द क्वांटम डॉट्स. क्वांटम डॉट्स क्या है? दे आर आर्टिफिशियल यानी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. दीज पार्टिकल्स हैं, नैनो स्केल पार्टिकल्स हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस. They are made from semiconductor material like silicons, but typically they range in the size from 1 to 100 nanometers. Nanometer की बात करें तो it is 10 to power minus 7 meter to 10 to power minus 9 meters. So they range in the size of 1 to 100 nanometers. These nanoscale crystal exhibit the unique optical and electronic properties. This includes the ability to transport electron and emit light of various colors. यानी कि UV lights में जब ये क्वांटम डॉट एक्सपोज्ड होते हैं, दे एमिट लाइट्स ऑफ वेरियस कलर्स, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड, मैंने पहले कहा था, ह्यूमन मेड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स रिफर्ड एज आर्टिफिशियल एटम्स बिकॉज दे बिहेव लाइक इंडिविजुअल एटम्स विद डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. अच्छा, क्वांटम थ्योरी क्या होती है? एक लाइन में हम समझें तो इसको समझ सकते हैं कि मोशन और बिहेवियर होता है बहुत छोटे पार्टिकल्स का नैनो स्केल पे, वो रेडिकली डिफरेंट होता है और रेडिकली स्ट्रेंज होता है when compared with the any familiar objects in the normal human experience. और इस तरह का strange behavior है at the subatomic level which is described by the hugely successful quantum theory, right? और लाइट का इफेक्ट क्या होता है ये आप एक बार देख लें स्क्रीन पे. अलग अलग साइजेस में कितने कितने एटम होते हैं, जनरली इट इज गिवन, बट इफेक्ट ऑफ लाइट क्या होता है क्वांटम डॉट पे. देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो लाइंस हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं. नीचे लोअर एनर्जी लेवल्स हैं और धीरे धीरे ऊपर होते हुए हायर एनर्जी लेवल है. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप लाइट एक्सपोज करते हैं, लाइट शाइन करते हैं, तो दिस क्वांटम डॉट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसके बाद री इमिट कर देते हैं इसको एक लाइट की तरह एट ए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. तो स्मॉलर डॉट होगा वो ब्लू लाइट इमिट करेगा और लार्जर डॉट होगा वो रेड, थोड़ा और लार्ज होगा वो और रेड, थोड़ा सा रेडिश होता जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एनर्जी मिली, लोअर एनर्जी में इसने एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला गया, राइट। फिर उसके बाद ये लाइट एमिट करता है जो कि वेरियस कलर की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज। सो लेट्स लर्न अबाउट द की प्रिंसिपल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटम डॉट्स। पहला है कि ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी क्वांटम डॉट्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पहला। दूसरा, दे एफिशिएंटली कन्वर्ट एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स इनटू द एमिटेड लाइट्स। हमने अभी देखा था स्मॉलर डॉट्स और लार्जर डॉट किस तरह की लाइट्स एमिट करते हैं, तो एफिशिएंटली कन्वर्जन होता है फ्रॉम एनर्जी टू लाइट। दूसरा है कि ये क्वांटम डॉट ब्राइटनेस और कलर को ओवर टाइम मेंटेन रख सकते हैं। इंटेंस लाइट एक्सपोजर में भी ये ब्राइटनेस और कलर को बहुत लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं। ऑल्सो दे एमिट वेल डिफाइंड कलर, ऑलरेडी डिस्कस्ड, विच इम्प्रूव द डिस्प्ले, right? And they are biocompatible. That means some quantum dots are very safe for biological applications. These quantum dots can also trap electrons for extended period of quantum application. तो इनके थोड़े से एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि बायो इमेजिंग में भी हो सकता है, क्वांटम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, सेंसर्स में, ड्रग डिलीवरी में, सोलर सेल्स में, इल्यूमिनेशन, डिस्प्ले, बहुत सारी तरह से हो सकता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहला है एलईडीज। सो क्वांटम डॉट्स यूज किए जा सकते हैं टू क्रिएट एलईडीज विद अ हाई ब्राइटनेस, प्योर कलर, लो पावर कंजप्शन एंड लॉन्ग लाइफ टाइम्स। सो लाइक इन देयर नेक्स्ट लेवल टीवी डिस्प्लेस। सेकेंड इज फोटोवोल्टाइक. These quantum dots can be used to create solar cell with high efficiency, low cost and the flexibility. And they can also be used in bioimaging. So they can be used to label and track biological molecules, cells and tissue with high resolution and contrast. And this bioimaging can be used for diagnosis, therapy and research. So overall in healthcare it can be useful and it can be used. For example, it can highlight a tumor that needs to be removed for targeted drug delivery and other therapeutic measures. They are also photodetectors. They can be used for detecting both infrared and visible light. इनके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स की बात करें तो एप्लीकेशन इनका है नाइट विजन कैमराज, राइट, बायोमेडिकल इमेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। और विजिबल लाइट के जो फोटो डिटेक्टर्स हैं दे कैन बी यूज्ड इन द इमेज सेंसर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इनकमिंग लाइट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटर्स जो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर बने हुए हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड लार्ज डाटा सेट को कैटर करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू मैप द बायोलॉजिकल टिश्यू बाई बायोकेमिस्ट। सो विजुअलाइजेशन ऑफ टिश्यूज, मॉलिकुलर और सेल्यूलर स्ट्रक्चर वो पॉसिबल हो सकता है। मार्कर्स, सिक्योरिटी मार्कर्स की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी मार्कर ऑन करेंसी एंड डॉक्यूमेंट एज एन एंटी काउंटरफेट मेजर। एंड ऑल्सो द फ्लोरोसेंट मार्कर्स कैन बी यूज टू टैग एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारी यूज हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे हमने कहा था कि कुछ क्वांटम डॉट्स सेफ हैं बायोलॉजिकल यूज के लिए, बट कुछ क्वांटम डॉट्स में दे कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट्स सच एज कैडमियम, लीड एंड दे मे पोज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क इफ दे लीक, राइट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो उनका टॉक्सिक इफेक्ट है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होता है। तो एफिशिएंट एंड रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज नीडेड। स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। कुछ क्यूडीज है, दे आर अनस्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज हीट, लाइट, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, और डिग्रेड हो सकते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है, रिलायबिलिटी डिग्रेड हो सकती है। तो स्टेबिलिटी एक इश्यू है। दूसरा है स्केलेबिलिटी। हमने कहा आर्टिफिशियल है, सिंथेसाइज किए जाते हैं, पर लार्ज क्वांटिटी में कुछ क्यूडीज को, क्वांटम डॉट्स को सिंथेसाइज करना डिफिकल्ट है, या फिर उनके यूनिफॉर्म साइज को मेंटेन रखना वो डिफिकल्ट है। तो इट मे लिमिट देयर अवेलेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, राइट। तो इसके लिए हमें एफिशिएंट और प्रिसाइज मेथड्स चाहिए होंगे टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी क्वांटम डॉट्स। नाउ कम टू द, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जो भी स्पेसिफिक न्यूज़ होती हैं, जैसे क्वांटम डॉट हो गया, क्यूबिट हो गया, क्वांटम से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें कभी कभी यूपीएससी पूछता है। फॉर एग्जांपल इन 2022 प्रीलिम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मैंशनड। यूपीएससी ने ये करंट अफेयर से उठाया था क्वेश्चन, क्यूबिट न्यूज़ में था, तो क्यूबिट इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। सो द करेक्ट आंसर of this question would be the quantum computing.
सो आज के लिए बस इतना ही था. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेस न्यूज इन फोकस सेशन ऑफ एप्टी प्लस अकेडमी. आई होप जो भी हमने डिस्कशन किया वो आपके अपकमिंग यूपीएससी स्टेट बीसीएस एग्जाम्स इनके लिए वैल्यूबल होगा फॉर ऑल स्टेजेस लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. Stay tuned for more educational content, information and topics useful for exams. And so keep learning, keep visiting Apti Plus YouTube channel here, and thanks for watching. Signing off.